1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान में आइज़ाया 25 चैप्टर 26 चैप्टर पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। आइज़ाया चैप्टर 25 26 किंग्स जेम्स वर्शन में से। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, हम ये वचनों को समझ नहीं सकते हैं, लेकिन जब तू हमें सिखाएगा इन वचनों को, निश्चित हम परमेश्वर इसके भेद ग्रहण कर पाएंगे। हमारी सहायता कर, इन वचनों को हम में खोल दे, नासरी यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। Chapter 25 The prophet praises God for his past judgments, for future salvation of his people, and for his victory over their enemies. First verse, O Lord, thou art my God, I will exalt thee, I will praise thy name, for thou hast done wonderful things. Thy counsels of old are faithfulness and truth. For thou hast made of a city an heap, of a defenced city a ruin, a palace of strangers to be no city, it shall never be built. Therefore shall the strong people glorify thee, the city of the terrible nations shall fear thee. For thou hast been a strength to the poor, a strength to the needy in his distress, a refuge from the storm, a shadow from the heat. When the blast of the terrible ones is as a storm against the wall, thou shalt bring down the noise of strangers as the heat in a dry place, even the heat with the shadow of a cloud. The branch of the terrible ones shall be brought low, and in this mountain shall the Lord of hosts make unto all people a feast of fat things, a feast of wines on the lees, of fat things full of marrow, of wines on the lees well refined. And he will destroy in this mountain the face of the covering cast over all people, and the veil that is spread over all nations. He will swallow up death in victory, and the Lord God will wipe away tears from off all faces, and the rebuke of his people shall he take away from off all the earth. For the Lord hath spoken it, and it shall be said in that day, Lo, this is our God. We have waited for him, and he will save us. This is the Lord, we have waited for him. We will be glad and rejoice in his salvation. For in this mountain shall the hand of the Lord rest, and Moab shall be trodden down under him, even as straw is trodden down for the dunghill. And he shall spread forth his hands in the midst of them, as he that swimmeth spreadeth forth his hands to swim. And he shall bring down their pride together with the spoils of their hands, and the fortress of the high fort of thy walls shall he bring down, lay low, and bring to the ground, even to the dust. Chapter 26 First verse से पढ़ेंगे। A song inciting to confidence in God, an exaltation to wait his coming to judgment. First verse, in that day shall this song be sung in the land of Judah. We have strong city, salvation will God appoint for walls and bulwarks. Second verse, open ye the gates, that the righteous nation which keepeth the truth may enter in. Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusteth in thee. Trust ye in the Lord forever, for in the Lord Jehovah is everlasting strength. For he bringeth down them that dwell on high. The lofty city, he layeth it low. He layeth it low, even to the ground.
he bringeth it even to the dust. The foot shall tread it down, even the feet of the poor, and the steps of the needy. The way of the just is uprightness. Thou most upright dost weigh the path of the just. Yea, in the way of the judgments, O Lord, have we waited for thee. The desire of our soul is to thy name, and to the remembrance of thee. With my soul have I desired thee in the night. Yea, with my spirit within me will I seek thee early. For when thy judgments are in the earth, the inhabitants of the world will learn righteousness. Let favor be shewed to the wicked, yet will he not learn righteousness. In the land of uprightness will he deal unjustly, and will not behold the majesty of the Lord. Lord, when thy hand is lifted up, they will not see, but they shall see and be ashamed for their envy at the people. Yea, the fire of thine enemies shall devour them. Lord, thou wilt ordain peace for us, for thou also hast wrought all our works in us. O Lord, our God, other lords beside thee have had dominion over us, but by thee only will we make mention of thy name. They were dead, they shall not live, they are diseased, they shall not rise. Therefore hast thou visited and destroyed them, and made all their memory to perish. Thou hast increased the nation, O Lord, thou hast increased the nation. Thou art glorified, thou hast removed it far unto all the ends of the earth. Lord, in trouble have they visited thee. They poured out a prayer when thy chastening was upon them, like as a woman with child that draweth near the time of her delivery is in pain, and crieth out in her pangs. So have we been in thy sight, O Lord. We have been with a child, we have been in pain, we have as it were brought forth wind, we have not wrought any deliverance in the earth, neither have the inhabitants of the world fallen. Thy dead men shall live, together with my dead body shall they arise. Awake and sing, ye that dwell in dust, for thy dew is as the dew of herbs, and the earth shall cast out the dead. Come, my people, enter thou into thy chambers, and shut thy doors about thee. Hide thyself as it were for a little moment, until the indignation be overpast. For behold, the Lord cometh out of his place to punish the inhabitants of the earth for their iniquity. The earth also shall disclose her blood, and shall no more cover her slain. हम इन्हीं वचनों को हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। यशायाह की भविष्यवाणी 25 और 26 अध्याय BSI बाइबल में से। परमेश्वर की स्तुति का गीत। हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सराहूंगा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने आश्चर्य कर्म किए हैं। तूने प्राचीन काल से पूरी सच्चाई के साथ युक्तियाँ की है। तूने नगर को ढेर बना डाला और उस गढ़ वाले नगर को खंडहर कर डाला है। तूने परदेशियों की राजपुरी को ऐसा उजाड़ा कि वह नगर नहीं रहा, वह फिर कभी बसाया न जाएगा। इस कारण बलवंत राज्य के लोग तेरी महिमा करेंगे, भयंकर जातियों के नगरों में तेरा भय माना जाएगा, क्योंकि तू संकट के दिनों के लिए गढ़ और
जब भयानक लोगों का झोंका दीवार पर बौछार के समान होता था, तब तू दरिद्रों के लिए उनकी शरण और तपन में छाया का स्थान हुआ। जैसे निर्जल देश में बादल की छाया से तपन ठंडी होती है, वैसे ही तू परदेशियों का कोलाहल और क्रूर लोगों का जय जयकार बंद करता है। परमेश्वर द्वारा तैयार भोज 6 वचन से आगे। सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसा भोज तैयार करेगा, जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और निथरा हुआ दाख मधु होगा। उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत ही निथरा हुआ दाख मधु होगा। और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घूंघट सब जातियों पर लटका हुआ है, उसे वह इसी पर्वत पर नष्ट करेगा। वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा। और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नामधराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। उस समय यह कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोहते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है, हम उसकी बाट जोहते आए हैं, हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। परमेश्वर मोवाब को दंड देगा। 10 वचन से आगे। क्योंकि इस पर्वत पर यहोवा का हाथ सर्वदा बना रहेगा और मोवाब अपने ही स्थान में ऐसा लताड़ा जाएगा जैसा घूरे में पुआल लताड़ा जाता है। वह उसमें अपने हाथ इस प्रकार फैलाएगा जैसे कोई तैरते हुए फैलाए, परंतु वह उसके गर्व को तोड़ेगा और उसकी चतुराई को निष्फल कर देगा। उसकी ऊंची ऊंची और दृढ़ शहरपनाहों को वह झुकाएगा और नीचा करेगा, वरन भूमि पर गिराकर मिट्टी में मिला देगा। परमेश्वर अपने लोगों को विजयी करेगा। 26 अध्याय पहले वचन से। उस समय यहूदा देश में यह गीत गाया जाएगा, हमारा एक दृढ़ नगर है, उद्धार का काम देने के लिए वह उसकी शहरपना और गढ़ को नियुक्त करता है। फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी जाति प्रवेश करे, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसको तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। वह ऊंचे पद वाले को झुका देता, जो नगर ऊंचे पर बसा है उसको वह नीचे कर देता। वह उसको भूमि पर गिराकर मिट्टी में मिला देता है। वह पांवों से वरन दरिद्रों के पैरों से रौंदा जाएगा। धर्मी का मार्ग सच्चाई है, तू जो स्वयं सच्चाई है, तू धर्मी की अगुवाई करता है। हे यहोवा, तेरे न्याय के मार्ग में हम लोग तेरी बाट जोहते आए हैं। तेरे नाम के स्मरण की हमारे प्राणों में लालसा बनी रहती है। रात के समय मैं जी से तेरी लालसा करता हूँ। मेरा संपूर्ण मन यत्न के साथ तुझे ढूंढता है, क्योंकि जब तेरे न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, तब जगत के रहने वाले धर्म को सीखते हैं। 10 वचन से आगे। दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए तो भी वह धर्म को न सीखेगा। धर्म राज्य में भी वह कुटिलता करेगा और यहोवा का महात्म्य उसे सूझ न पड़ेगा। हे यहोवा, तेरा हाथ बढ़ा हुआ है, पर वे नहीं देखते, परंतु वे जानेंगे कि तुझे प्रजा के लिए कैसी जलन है और लजाएंगे। तेरे बैरी आग से भस्म होंगे। हे यहोवा, तू हमारे लिए शांति ठहराएगा। हमने जो कुछ किया है उसे तू ही ने हमारे लिए किया है। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तेरे सिवाय और स्वामी भी हम पर प्रभुता करते थे, परंतु तेरी कृपा से हम केवल तेरे ही नाम का गुणानुवाद करेंगे। वे मर गए हैं, फिर कभी जीवित नहीं होंगे। उनको मरे बहुत दिन हुए, वे फिर नहीं उठने के। तूने उनका विचार करके उनको ऐसा नष्ट किया कि वे फिर स्मरण में न आएंगे। परंतु तूने जाति को बढ़ाया। हे यहोवा, तूने जाति को बढ़ाया है, तूने अपनी महिमा दिखाई है और उस देश के सब सीमाओं को तूने बढ़ाया है। हे यहोवा,
दुख में वे तुझे स्मरण करते थे। जब तू उन्हें ताड़ना देता था, तब वे दबे स्वर से अपने मन की बात तुझ पर प्रकट करते थे। जैसे गर्भवती स्त्री जनने के समय ऐंठती और पीड़ा के कारण चिल्ला उठती है, हम लोग भी है यहोवा तेरे सामने वैसे ही हो गए हैं। हम भी गर्भवती हुए, हम भी ऐंठे, हमने मानव वायु ही को जन्म दिया। हमने देश के लिए कोई उद्धार का काम नहीं किया और न जगत के रहने वाले उत्पन्न हुए। तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी में बसने वालों, जाग कर जय जयकार करो, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है और पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगी। न्याय और छुटकारा 20 वचन से आगे। हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो। थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत न हो, तब तक अपने को छिपा रखो, क्योंकि देखो यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है और पृथ्वी अपना खून प्रकट करेगी और घात किए हुओं को और अधिक न छिपा रखेगी। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। टू ईयर्स बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। जॉन 1 चैप्टर 35 वर्स से 42 वर्स और एंड 1 किंग्स 3 चैप्टर, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 35 वचन से 42 वचन तक और पहले राजाओं की पुस्तक 3 अध्याय। हम पढ़ेंगे अकेले में बैठकर, पर्सनल टाइम में, व्यक्तिगत समय में। परमेश्वर का आत्मा हमको इन वचनों को सिखाएगा, इसके भेद दिखाएगा और हम परमेश्वर की जो डेस्टिनी को प्राप्त करना है, उस डेस्टिनी में पहुंचने के लिए हमें फिट एंड फिक्स करेगा। हमारे अंदर परमेश्वर का ईश्वरीय व्यवस्थितपन रचाएगा और हमें डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आके परमेश्वर के लिए योग्य ऐसा इंसान बनाकर देगा, परमेश्वर के हाथों में देगा। हालेलुया, ताकि हमें परमेश्वर इस्तेमाल कर सके। हमने ये होने के लिए परमेश्वर ने हमको अनुग्रह का आत्मा दिया है और ऐसा आनंद भरा हुआ अनुग्रह का आत्मा है जो हमें इन वचनों के भेद समझने में, समय लगाने में हमें सहायता करता है, हमें मन देता है। हालेलुया, और ये अनुग्रह के आत्मा का हमने निश्चित लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं, इन वचनों को हमारे अंदर से खो जाने मत दे। इन वचनों को हमारे अंदर पकड़े रखना, थामे रखना, ताकि इसके भेद जब तू खोलेगा तो ये वचन हमारे चित्त में ठहरा हुआ प्राप्त होगा और हमारे जीवन बदल जाएंगे। हम उस डेस्टिनी में होंगे जिसमें परमेश्वर हमें रखना चाहता है। हम व्यवस्थित हुए रहेंगे और फिट एंड फिक्स किए हुए रहेंगे जब तू हमें इन वचनों के भेद खोलकर समझाएगा। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन।